Hello guys, so again just I came to another hospital and just I got this kind of dummy things. Okay, so let's see a spectrum of liver damage. So you can see here there is some presentation made here, and depending on that we can understand the spectrum of liver damage. Okay, so you can see here the healthy liver, which is no any scar formation, no any roughness, no any rugosity is there. That is a healthy liver. There is no deposition of cholesterol in the liver. That is a kind of calling अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ एंड ऑल. तो हेल्थी लिवर में कुछ भी नहीं, फैट्स वगैरह अंदर कुछ नहीं है, ये हेल्थी लिवर है. नाउ यू कैन सी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. देयर इज सम रुगोसिटी यू कैन नोटिस. देयर इज अ रुगोसिटी यू कैन नोटिस दैट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ the cholesterol or fats in the liver. Okay, that is non-alcoholic. Again it is a non-alcoholic fatty liver. Okay, non-alcoholic fatty liver. Fats inside the liver it's there, but it is non-alcoholic due to you all know very well कि cirrhosis of liver is mainly caused by our kind of alcohol only. Okay, but you don't know about that कि there are 13 stages or the 13 etiological factors for the cirrhosis of liver, and out of that 13 there is a primary one is cirrhosis of liver. It's due to alcohol only. Okay, so that I am saying कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में इसमें अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर ये नहीं होता है. ये विदाउट अल्कोहल के भी द काइंड ऑफ फैटी लिवर स्टेज आता है, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर स्टेज. ओके, वेयर द deposition of fats inside the liver is happening. Okay, now you can see here the non-alcoholic steatohepatitis. That means there is a storing of excess fat in the liver. Okay, that is nothing but our steatohepatitis, non-alcoholic steatohepatitis, storing of excess fat in the liver. Okay, that is due to overweight, due to obese, due to diabetes mellitus kind of things. There is a build-up of, or you can say fats and all in the liver. Okay, so there are again the four stages. There are the four stages of non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. Okay, so fat in the liver, initially there is a asymptomatic. In the first stages means there is a asymptomatic stage रहता है. उसमें कोई भी पेशेंट को सिम्टम नहीं रहेगा, पेशेंट के लीवर में फैट्स स्टार्ट हो जाएगा डिपोजिशन, बट पेशेंट असिम्टोमेटिक रहेगा, उसको कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने लगता है, लीवर के सेल में इन्फ्लेमेशन होना. क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज लीवर इज रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यूज़. क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो लीवर सेल होता है डैमेज होना स्टार्ट होता है, और लीवर क्या करता है, उस डैमेज टिश्यू को प्रिपेयर करना, यानी कि उसको रिपेयर करने को स्टार्ट करता है. सो लीवर को स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है, जिसके से काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन लीड्स टू स्कार फॉर्मेशन. ओके, एंड व्हेन स्कार टिश्यू स्टार्ट टू डेवलप, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइब्रोसिस. सो नॉन अल्कोहलिक स्टेatohepatitis से काइंड ऑफ फैट डिपोजिशन हुआ, उसके बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. दैट इज नथिंग बट नॉन अल्कोहलिक स्टेatohepatitis. ओके, थर्ड स्टेज में क्या होगा कि परसिस्टेंटली स्कार फॉर्मिंग होगा, एंड दैट हैम्पर द लिवर फंक्शन, एंड लिवर नीड्स टू काइंड ऑफ यू कैन से मोर एंड मोर अट्रैक्शन टू देयर टू परफॉर्म द काइंड ऑफ डैमेज टिश्यू, उसको रिपेयर करने के लिए, एंड दैट्स वाई नॉर्मल फंक्शन उसका इनिबिट हो जाएगा. ओके, एंड लिवर स्टॉप द फंक्शन टोटली, एंड दैट्स वाई इट लीड्स टू द सिरोसिस ऑफ द लिवर. ओके, तो ऐसे ही कुछ स्टेज आता है फ्रॉम द नॉर्मल लिवर टू द सिरोसिस ऑफ लिवर एंड ऑल. तो you can see here injure and kill liver cell, inflammation, dying of liver cell causing the scar formation, and ultimately liver cell that do not die multiply and attempt replace the cell that has already died, and there is a result in the cluster of newly formed liver cells. Okay, that is called as the regenerative nodules are there. Okay, तो जो भी लीवर सेल जो डाई नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, जो डाई हो चुके हैं उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वाई उस स्कार के जो स्कार बना हुआ रहता है उसमें ही क्या होता है, काइंड ऑफ क्लस्टर ऑफ न्यूली सेल्स डेवलप होते रहते हैं लीवर में, एंड दैट इज रिजल्ट इन द दिस ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर. लाइक यू कैन से दिस इज द वाइट लाइक, ये स्कार में डेवलप होते हैं, विच इज अल्टीमेटली दैट इज नॉट यूजफुल. ओके, तो देर आर 12 टाइप ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर के देर आर 12 टाइप ऑफ etiological factors are there. Okay, so that is all about for spectrum of liver damage.